Hello students, am I audible? If I'm audible, please do say yes in the chat box. Okay, so I have received one yes from you guys. So that means I'm audible. So let's start with this session on R. Let me open up my slides. Yeah. So today we will be starting our journey with R and specifically for basically actuarial science. And we will be looking into the things like how to write code in R, how to basically how you can basically get familiar with the language R, how you can solve your CS1, CS2 questions with R. This like first 5 to 6 classes will be like including the basic R concepts. So we'll be studying okay what is R. Okay, and I will be using the medium of communication will be English, so Hindi and English mix, and you will be studying so what is basically R and how we like what are the tools that we need to like write code in R. Okay, and then what are the basic concepts of R and things like this. So first of all, सबसे पहला सवाल आता है यहाँ पे, that is basically why R. So the courses that you are doing, so CS1, CS2 subjects, they are there from very long time. So what is like what has happened that you now need a programming language to like you need to learn a programming language in these two subjects, or specifically yeah, for actuarial science you need to understand that there is a basically programming language and you have to know the concepts of that programming language, and you have to like work on these things in the industry. So that so the most important thing here is, so just look at the slide and look at the data in the slide. Okay, so there is a lot of data that is getting created. So everyone nowadays, so we are using like smartphones, smart watches, wearable devices. We are using a lot of social media, and we are like creating a lot of data every day. So these are some of the numbers. So there are around 12 crore new data producing social media users added every day. So basically, this is the number of users that are getting added. 656 million tweets per day. Okay, 67 lakh Instagram posts per day. So this is just to show you that how the data is growing. So if we basically try to just get an example that how this data is useful in the insurance industry or in the different industries. So just think about this scenario. You are wearing a watch, a smart band, a smart watch. You are tracking your steps every day. Okay, your smartwatch is smart enough to tell you that if you have a sedentary lifestyle or not. क्या आप पूरा दिन बैठे रहते हो, क्या आप पूरा दिन बेसिकली वॉक कर रहे हो. सो दैट शोज योर लेवल ऑफ लाइक हाउ हेल्दी यू आर. ओके, तो वो चीजें सिग्निफाई होती है इस डेटा से. ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे आप इतना डेटा माइन कर सकते हो, इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. जो ये डेटा है इसको नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है. अब ये डेटा जो है, अगर आपने देखा होगा रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, दे विल गिव यू एडिशनल बेनिफिट्स. तो जैसे आपका 10,000 का इंश्योरेंस होता है रिन्यू एवरी ईयर, तो आपको वो 10,000 पे कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर कंप्लीटिंग एक्स नंबर ऑफ स्टेप्स एवरी डे. अब देखो ये स्टेप्स उसको कैसे पता लग रहे हैं. दिस इज द डेटा दैट वी आर सेंडिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी. तो यहाँ पे क्या है, आप ऐप डालते हो, वो ऐप जो है वो आपके चीजों को ट्रैक करती है, एंड देन वो जो है आगे जाके डेटा आपका कन्वर्ट होता है नॉलेज के अंदर, और उनको पता लगता है कि हाँ इस बंदे को इंश्योरेंस अगर हमने बेची हुई है, तो व्हाट आर दी चांसेस फॉर दिस पर्सन टू गेट इल, और लाइक व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. तो ऐसे इंफॉर्मेशन को आप माइन करते हो व्हेन यू आर बेसिकली यूजिंग दीज स्मार्ट डिवाइसेस. ओके, तो अब ये डेटा जो है इट इज ग्रोइंग एट वेरी वेरी ह्यूज पेस. ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ रहा है डेटा. अब क्या चाहिए आपको. नाउ यू हैव टू बेसिकली वर्क ऑन दिस डेटा. तो लाइक
आप एल्गोरिथम सीखते हो, ठीक है, बहुत सारी अपनी CS1 CS2 के अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है, आपकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं काफी टाइम से। तो CS1 में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, CS2 में बहुत सारी चीजें सीखी। अपार्ट फ्रॉम CS1 CS2 अगर और भी आप किसी फील्ड में आप देख रहे हो, डेटा एनालिटिक्स में देख रहे हो, डेटा साइंस में देख रहे हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, एल्गोरिथम सीख रहे हो, जो किस पे काम करती हैं। आपके रिजल्ट्स तभी वैलिड आएंगे जब आप जो है बेसिकली डेटा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो डेटा जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो डेटा होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेटा आपके पास बहुत सारा आ गया। अब एक मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि अगर आपको 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ डेटा जो है एग्रीगेट करना है, तो उनके पास आपके पास कुछ डेटा है, उनकी एज, नेम, उनका एडमिशन डेट, ठीक है, उनके फैमिली में कितने लोग हैं, उनके कितने सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, फैमिली एनुअल इनकम, ऐसा कुछ डेटा आपके पास। अब इस डेटा को आपने जो है बेसिकली आप ये लगाओ कि आपने 100 स्टूडेंट्स का डेटा निकाला है, और ये 100 स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास कहाँ पे होगा? ये 100 स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास आ रहा होगा। Okay, so someone has said that my voice is not audible. So, is it fine now, or like some of you are not still not able to hear me, or is this with just one user? So, if I'm audible clearly now, so please just write yes in the chat box. And there might be some scenarios with your internet. ओके, सो इट्स फाइन नाउ। ओके, सो ये डेटा हम इतनी पेस पे ग्रो कर रहे हैं। अब आपको बात बता रहा था मैं कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, देयर आर सम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके लिए राइट टूल, अभी आप सोचोगे कि आपके पास ये डेटा है, क्योंकि आपके पास अभी तक जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि मैं क्या करूंगा, मैं ये डेटा को सेव करता हूँ एक एक्सेल शीट के अंदर। देन मैं वहां से आपकी एवरेज इनकम्स और ऐसा जो डेटा, जो भी मेरे को नॉलेज निकालनी है इस डेटा में से, वो मैं निकाल सकता हूँ बहुत इजीली, और वो इजी भी है। अब ये डेटा बढ़ के हो गया लेट्स से 500 स्टूडेंट्स, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपका स्कूल ग्रो कर रहा है, डेटा बढ़ गया, 500 स्टूडेंट्स आ गए आपके पास। नाउ यू हैव टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग कि आपको क्या नया इंट्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट पीपल आर लाइकिंग, क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी चीजों पे और एनालिसिस करना है। तो आपने 500 स्टूडेंट्स का डेटा भी एक एक्सेल शीट में डाला, एंड नाउ यू आर यूजिंग दैट एक्सेल शीट फॉर बेसिकली योर एनालिसिस पर्पस। अब ये डेटा जो है आपका जो स्कूल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये और ग्रो कर रही है। अब ये डेटा आपके पास हो गया है 1 लाख स्टूडेंट्स, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस आपने खोल दी है, 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास आ गया है। अब ये 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा जो है, इसको अगर आप एक्सेल में कर रहे होगे, शायद आप कर पाओ, शायद कर पाओ, क्योंकि अब इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी जो है बेसिकली क्या रेट पे आपका डेटा ग्रो कर रहा है, कितना बड़ा डेटा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये आपको अभी समझ जब आएंगी, तो आप देखोगे कि हाँ, शायद मैं एक्सेल में कर सकता हूँ उसको भी। बट अब आप सोचिए 1 लाख से भी नंबर डबल हो गया, अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रोज हो गए आपके पास, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप हर साल जो है, हर महीने आप कुछ नया डेटा एक्यूमुलेट करे जा रहे हो। पहले आपके पास एक ही साल का डेटा था, फिर 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 10 साल का हुआ। तो जो 1-2 साल वाले सिनेरियोस थे ना, ये आज से 10 साल पहले आके जा चुके हैं। जब हमारे पास इनिशियली क्या होता था कि सब लिखत में होता था, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, वी वर हैविंग द रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर एवरीथिंग, बिल्स वर इन द रिटन फॉर्मेट। तो आपने देखा होगा अपने घरों में जिन लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो बिजनेस लाइन में हैं, तो एक उन फाइल्स बना के रखते थे बहुत सारी, क्योंकि ई डॉक्यूमेंटेशन का उस टाइम पे जो है, द टाइम वर नॉट लाइक इन सिंक विद द ई डॉक्यूमेंटेशन। अभी ये रिसेंट टाइम में ग्रो हुई हैं ये सब चीजें। अब आपके पास ई बिल्स होते हैं हर चीज के, यू हैव ई बिल्स, यू हैव डेटा ऑन दी सिस्टम, ठीक है, क्लाउड पे डेटा पड़ा हुआ है। तो अब के केस में क्या है कि ये डेटा जो है रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारे पास। इनिशियली ये 1-2 साल का डेटा कम था, फिर बड़ा हुआ 10-15 साल बाद द डेटा हैज ग्रोन सो मच दैट आपके पास कुछ स्टैट्स तो मैंने यहाँ पे शो करे ही हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, बट ये जो डेटा है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस ग्रोथ के साथ कोप अप करने के लिए अब वो एक्सेल और जो ट्रेडिशनल वेज थे काम करने के, या आप मैनुअली देख के बता सकते थे आप कि हाँ ये चीज कैसे हो रही है, अच्छा ये डेटा तो ये मैं कैलकुलेटर से कर लूँ, अब वो चीज जो है करना मुश्किल होता जा रहा है। तो वो इस डेटा के साथ कोप अप करने के लिए
आप लोगों को भी कोप अप करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ जो आप लोग जो है ये आर पढ़ोगे और ऐसे टाइप के डेटा पे काम करते हो। ठीक है, जब आप अभी हम अपने कोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम आर सीख सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आर, जो कि हम विदाउट आर भी कर सकते हैं। बट जब आप इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो लेट्स से आप एक्चुअल बैकग्राउंड से हो, आपने सब कुछ करा हुआ है, आपने आज से 4-5 साल पहले पास आउट किया था, आपने सारे कोर्सेज कर लिए थे, ठीक है, मतलब सारे अपने पेपर्स भी क्लियर कर लिए थे, अब आप जाके काम कर रहे हो इंडस्ट्री में। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, तो वहां पे आपको जो है एक डिपेंडेंसी रहेगी कि इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा आपके पास है, तो आप उसको कैलकुलेटर से नहीं कर पाओगे। तो इधर क्या होगा कि आप उस टाइम पे अब जो अभी पास आउट हैं लोग, तो अभी जो बेसिकली ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड दे आर लाइक क्लियरिंग दीज पेपर CS1 CS2, ठीक है, तो दे आर वेरी लाइक प्रोफाइंड इन लाइक आर लैंग्वेज, ठीक है, तो उनके साथ कोप अप करने के लिए आपको उस पॉइंट पे भी आर को समझना पड़ेगा। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग योर एग्जाम, इस चीज को अपने माइंड से निकाल देना। अगर आप इस चीज को ठीक से नहीं करोगे तो आपको इंडस्ट्री में जाके भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग। तो ये चीज जो है आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट के अब आर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो आर है क्या, देखो सबसे पहले आज से कुछ लाइक इफ वी गो सम इयर्स बैक, लाइक नॉट सम मेनी इयर्स बैक, देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड एज एस लैंग्वेज, ठीक है। सो इस लैंग्वेज में क्या था, दिस लैंग्वेज वाज लाइक एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस, अब और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वी हैव पाइथन, वी हैव आर, वी हैव सी प्लस प्लस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे हु हैव डन सी प्लस प्लस इन योर स्कूलिंग डेज, ठीक है। तो वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सो व्हाई आर, स्पेसिफिकली आर क्यों पढ़ रहे हैं आप हम आज, और हमारे कोर्स में आर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। सो बेसिकली आर इज अ सक्सेसर ऑफ एस लैंग्वेज। तो एस एक लैंग्वेज थी विच वाज बिल्ड फॉर स्टैटिशियंस, ठीक है। तो उसमें क्या था कि दे हैड द फंक्शन, तो आपको मिनिमम से मिनिमम जो जो हम कहते हैं ना कोड लिखना, कोड आपका मिनिमम से मिनिमम हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर आउटपुट निकाल पाओ। आपको जैसे हम और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, उसमें बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हैं, जैसे आपके लिए अजीब सी होंगी बट ये सब लैंग्वेजेस में कॉमन होती हैं। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये वो, these things are not very important in R. So R will provide you a base to perform your operations and in a very easy format, ठीक है। तो कितना इजी से इजी आप ये चीजें कर सकते हो वो R आपको सिखाएगा, ठीक है। मतलब आपको मीन निकालना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मीन लिखोगे, अपना डेटा पास करोगे, मीन आ जाएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतना इजी नहीं होता, आपको हो सकता है कि इसके लिए फंक्शंस बनाने पड़े, इसके लिए आपको 5-7 लाइन का कोड लिखना पड़े। आर में वो सब चीजें नहीं होती। तो आर इज मेड फॉर स्टडीशंस, ठीक है, फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए वो इट इज अ वेरी लाइट वेट एंड इट कैन वर्क ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग आर। एंड जो एस लैंग्वेज की बात बता रहा हूं, तो एस वाज अ पेड टूल, ठीक है। अब हम यूज करते हैं एक्सेल, यूज करते हैं, तो अभी के लिए बहुत सारे लोग हैं वो परचेज नहीं करते हैं एक्सेल को, ठीक है। तो वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ एक्सेल या पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं। ऐसे ही एस लैंग्वेज वाज आल्सो पेड टूल, ठीक है। तो जैसे पेड टूल के हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है पेड और एक होता है फ्री या ओपन सोर्स हम जिसको कहते हैं। तो एस एक पेड लैंग्वेज था, अगर आपको यूज करनी है तो यू विल हैव टू पे अ प्रीमियम for that particular subscription and then you can use that language for your use, okay। but R जो है it is a free tool, ठीक है, ओपन सोर्स टूल है। यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करना, आपको किसी भी चीज के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक आर लैंग्वेज, जो आर लैंग्वेज अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ली है, तो वो इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इजीली बेसिकली यूज आर इन द टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होता है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मतलब इस ये वाली स्लाइड के बाद आपको एक चीज पे मूव करेंगे हम, तो बताऊंगा कि टर्मिनल क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं थोड़ी सी, जो कि हो सकता है कि आपके लिए इतनी फेमिलियर ना हो, बट यस दे आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब ये हमने आर समझ लिया कि आर क्या चीज है, आर क्यों पढ़नी है हमें, ये दो चीजें समझ आ गई है हमें। अब आर
को चलाएंगे कैसे, ठीक है। अब जैसे आप अगर बात करो कि आपको शीट बनानी है एक, ठीक है, तो उसके लिए आपका टूल क्या है, आपको जो है या तो आप गूगल शीट्स यूज करोगे या आप एक्सेल यूज करोगे, ठीक है। ये आपके पास टूल्स हैं, बेसिकली ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो अपना काम करने के लिए, अगर आपको एक शीट बनानी है, ठीक है। तो एक्सेल आपका टूल है जो आपको शीट बनाने में हेल्प करेगा। वैसे ही आर एक टूल है जो आपको बस आपका कोड लिखना है। अब आपको तो कोड लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आर चाहिए जो कि उस कोड को समझ पाएगा, जो आपने लिखा उसको समझ के उसके हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो चाहिए दैट इज बेसिकली योर टूल टू राइट योर कोड। अब आर तो चला देगा, बट उसको कुछ जो इंस्ट्रक्शन उसके लिए लिखोगे वो कहीं पे लिखनी पड़ेंगी, वो आप एक नोट पैड पे भी लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट एन एडवाइजेबल वे ऑफ डूइंग, ठीक है। तो हम अपने आप को मतलब इजी तरीके से हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, बट हम प्रोग्रामर्स नहीं है, हम कोडर्स नहीं है। तो वी विल लर्न द इजी वे, जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं एंड हमारे पास सारी असिस्टेंस भी अवेलेबल होगी कि हाँ अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो वो कहाँ से लेनी है हमें, मतलब जो स्क्रीन दिख रही है वहीं पे, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि होम पे मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा तो मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे ऑप्शंस हमें अवेलेबल हो, ठीक है। जस्ट हाँ, तो ऐसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो, हमें हर चीज के लिए कोड जो है मिनिमम से मिनिमम करना, तो वो हमारा जो टूल है दैट इज आर स्टूडियो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टूल्स है जो हमें चाहिए होंगे। डाउनलोड लिंक्स जो है आपको ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट सम मोर टूल्स फॉर यू। राइट, तो हम जाते हैं अगर आर स्टूडियो को, यहाँ पे इसे खोल लेते हैं, इसे इसे करते हैं कॉपी, लेट्स ओपन दिस इन द ब्राउजर, ठीक है। तो बेसिकली ये डाउनलोड लिंक है। यहाँ पे अगर आप, अब हम विंडोज यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम विंडोज का यहाँ पे हमारे पास रिकमेंडेड सिस्टम आ गया है, तो यू कैन डाउनलोड आर स्टूडियो हेयर। आप इसको इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, उसके बाद ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, वही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए करते हो, ठीक है। तो वो स्टेप्स जो है अगर आपको उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट यू कैन आस्क सेपरेटली, ठीक है। ये लिंक्स जो है ये आपको पहले ही प्रोवाइड जो है वो कर दिए थे, तो आई होप कि यहाँ पे आपको इशू नहीं आएगा कुछ भी डाउनलोड और इंस्टॉल करने में। एंड अदर थिंग ये हो गया आपका आर स्टूडियो। जो एक और चीज आपको चाहिए दैट इज बेसिकली आर, ठीक है। तो इस लिंक को भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स ओपन दिस लिंक एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो डाउनलोड आर फॉर विंडोज, या आप मैक सिस्टम यूज करते हो तो मैक, नहीं तो आप लिनक्स यूज, मतलब अगर लिनक्स उबंटू और ये सब यूज करते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी यूजिंग विंडोज, तो आप विंडोज को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल कर विंडोज वाला डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप सेम वही नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इट शुड आइडली वर्क फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। if any of you is having any basically problem in downloading or installing this R, that is a separate thing, so you can basically ask that questions, you can ask your doubts, and we will be trying our level best to get the doubts sorted as early as possible, okay, and so that you are not blocked anywhere, so that will be our goal, okay। तो अब हमने देखा कि हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आर चाहिए होता है, आर स्टूडियो चाहिए होता है। आर, अब मैंने बोला कि आर जो है वो एक टर्मिनल पे काम करता है, तो अगर मैं यहाँ पे आर स्टूडियो आपको दिखाऊं तो आर स्टूडियो ये होता है, ये प्लेटफॉर्म को कहते हैं हम आर स्टूडियो। इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है, ये टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल क्या होता है, अगर आप कोडिंग करते हो या आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपने ये वाली विंडो देखी होगी, काफी प्रोग्रामर्स जो हैं वो ऐसी विंडो पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम टर्मिनल। अब आप खुद सोचो कि इस पे आप कोड लिख रहे हो आर का, वर्सेस आपको ये वाला एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो दोनों में से क्या अच्छा है, ठीक है। करने को आप इस पे भी कोड कर सकते हो आर,
it is not a problem, but yes, it is not advisable to anyone to write your code here. So we will be using RStudio, and RStudio में भी अगर आपको टर्मिनल में कोड लिखना है तो this is basically a terminal for you. आप यहाँ पे R का कोड लिख सकते हो, बट वो एडवाइजेबल नहीं है और हम करेंगे भी नहीं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी यूजिंग टू पार्ट्स. पहला पार्ट होगा कंसोल. ये आर का कंसोल है. यहाँ पे आप अपनी कमांड्स लिख के और अपने जो है बेसिकली कमांड लिखोगे, आपको साथ के साथ आउटपुट मिलता रहेगा. ठीक है. सेकंड इज योर फाइल मोड. तो यहाँ पे फाइल में आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हो. तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को आप एक साथ रन कर सकते हो. ठीक है. तो ये दोनों फर्क हैं. हम जब पढ़ेंगे आगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जब हम आगे आगे पढ़ रहे होंगे तो यू विल बी गेटिंग टू नो कि हाँ कब हमें फाइल यूज करनी है, कब हमें कंसोल को यूज करना है. इट इज जस्ट टू मेक यू फेमिलियर के आर का जो हम काम करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, व्हाट आर द टूल्स दैट विल बी नीडिंग. तो आर स्टूडियो एंड आर, दीज आर द टू टूल्स. ठीक है. एंड ओके, उसके बाद अब हम वही बात कर रहे हैं कि आर जो है दो तरीके से चलती है. फर्स्ट इज इंटरएक्टिव एंड बैच मोड. जब आप अपनी कमांड्स को यहाँ पे लिखोगे, तो लेट्स से एक छोटी छोटी कमांड्स का एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने वेरिएबल बनाया v, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली 1 2 3. ठीक है. तो ये आपकी एक कमांड हो गई. ठीक है. अब ये चल गई है कमांड. अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका वेरिएबल बना हुआ आ गया. वो कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है आपके पास v, जिसके जिसके अंदर तीन चीजें हैं, 1 2 और 3, 3 पॉइंट्स. सिमिलरली मेरे को मीन निकालना है, तो मैंने मीन निकाला और मैंने बोला v. साथ साथ में आउटपुट दे, मतलब साथ साथ कमांड दे रहा हूँ, साथ साथ आउटपुट आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरएक्टिव मोड. इंटरैक्ट कर रहा है वो हमारे साथ एकदम. ठीक है. दूसरी चीज क्या है, मैं सेम चीज को कॉपी कर सकता हूँ, मैं एक फाइल में लिख सकता हूँ. ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों कमांड में एक साथ चलाऊं. अभी देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, मैं एंटर वगैरह कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना. तो ये चल नहीं रहा है अभी तक, जब तक मैं इसको बोलूंगा नहीं. अब मेरे को जो जो कमांड्स को चलाना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया. सिंपली मैंने यहाँ से हमारे पास आ रहा होगा रन का ऑप्शन एक. तो वी कैन डू कंट्रोल प्लस एंटर. उससे आप रन कर सकते हो अपने कोड को. और सेकंड तरीका क्या है रन करने का, ये आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, तो वो भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए. शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर. आपने जो भी रन करना है आपने उसको सिलेक्ट किया और आप करोगे कंट्रोल प्लस एंटर, तो उससे रन हो जाएगा. अब सेकंड तरीका क्या है इसको रन करने का, ये आपको रन का बटन दिख रहा है यहाँ पे. आप इसको क्लिक करोगे तब भी ये सेम चलेगा. आप नीचे देख रहे हो जो जो आप करते जा रहे हो वो चीजें क्या है वो यहाँ पे आती जा रही है. तो जैसे अभी हमने इसको क्लियर कर दिया, ये जो ब्रूम का आइकन एक आ रहा है, तो दिस इज यूज टू क्लियर योर टर्मिनल. जो भी आपके लॉग्स हैं, जो भी द थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, वो हट जाएंगे यहाँ से. वापस एक फ्रेश कंसोल खुल जाएगा. यहाँ पे आपको ये रन करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट क्लिक ऑन, सिलेक्ट हुआ है. अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे खाली इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आई हैव सिलेक्टेड दिस पार्ट, आई विल क्लिक ऑन रन. सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रन हुई है. बट नाउ मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ. आई वॉन्ट टू रन दीज टू स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट द टू स्टेटमेंट्स, आई विल क्लिक ऑन रन. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई हैं. I have a variable v and mean of that particular three numbers is 2. ठीक है. तो this is how I will work with RStudio. तो ये हमारा होता है जो ऊपर हमने फाइल से सिलेक्ट करके किया. तो this is the batch mode. यहाँ पे हम जब कुछ भी लिख रहे हैं कमांड्स और हम वहाँ पे टाइप करके और उसको आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट इज हमें साथ साथ इनपुट मिल रहा है, आउटपुट भी मिलता जा रहा है. इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट मिलता जा रहा है. तो दैट इज कॉल्ड इंटरएक्टिव मोड. ठीक है. तो ये दो मोड्स हैं हमारे, जिसके बारे में हमने अभी बात करी है. ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली यहाँ तक यू शुड बी फेमिलियर विद आर. ठीक है, कि आर क्या है और क्यों करते हैं. इसके बाद हम अब जो स्टार्ट करेंगे, विल नॉट वेस्ट एनी टाइम. वी विल स्टार्ट विद लाइक जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आर के, उस पे हम स्टार्ट कर देंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन बेसिकली द चैट सेक्शन. So there is one question that can we run R in Visual Studio Code? Yes, you can run, but it is not advisable. And class में भी जो हम कर रहे होंगे, we will be using R Studio. And if आपके Visual Studio Code specific doubt आता है, तो that will be like you will have to handle that doubt by yourself, क्योंकि that is not an advisable way. आपके पास IntelliSense वहाँ पे जो है प्रॉब्लम आएगी, फाइल लोड अनलोड करनी है उसमें प्रॉब्लम आएगी.
कई बार क्या होता है, अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सो लेट्स से कि आपने एक लेट्स से मीन जो था यहाँ पे एक फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने मीन के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी। आपने मीन के अंदर बोला 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, अब अगर आप सोचो कि मैं ये मीन वाला फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, मीन बी, तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये, राइट, एक मिनट को, जैसे ये मीन फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मीन फंक्शन क्या कर रहा है, वो एक मीन कैलकुलेट कर रहा है। अब ये नाम को आप ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। मीन नाम से आप अपना एक और फंक्शन बना सकते हो। आपने फंक्शन बना दिया तो एक्चुअल बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन विल बी ओवररिडन। अब जो आपने बोला है वो काम करेगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। और आपको अब अगर लेट्स से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको मीन कैलकुलेट करना है। अब वो मीन कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि आपने ओवरराइड कर दिया। आप जब मीन लिख रहे हो तो उसका एक्चुअल मतलब जो है वो मीन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आप ग्लोबल वेरिएबल्स में जाके अपने कोड को डीबग कर सकते हो कि हाँ, जो मैंने लिखा है क्या वो सही चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो क्या रीजन है। तो ऐसी हेल्प मिल जाएगी। अब लेट्स से कि मेरे को जानना है कि मीन फंक्शन क्या करता है, तो मैं करूंगा क्वेश्चन मार्क, मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क एंड बोला मीन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेरे को यहाँ पे आप देखोगे इसने एक हेल्प खोल के दी कि मीन फंक्शन क्या करता है। तो अब यहाँ पे क्लियरली बता रहा है जेनेरिक फंक्शन फॉर द ट्रेंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। इसके अंदर आप क्या क्या पास कर सकते हो वो चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको तब तक नहीं पता, ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ये सब चीजें जो है वो नहीं पता लगेंगी, और वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इट इज नॉट एन एडवाइजेबल वे टू रन योर कोड, ठीक है। तो हम विजुअल ये आर स्टूडियो ही यूज करेंगे एंड वी विल बी यूजिंग आर स्टूडियो फॉर लर्निंग, ठीक है। ठीक है, तो देयर इज नो अदर डाउट, तो लेट्स गो अहेड। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, कोडिंग ब्लॉक्स हैं ये, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आर, और कुछ हम करते हैं यहाँ पे ताकि हमें और अच्छे से पता लग सके कि आर के अंदर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस थिंग, लेट मी ऑल्सो क्लियर दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आर में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज अ वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? सो आपने बहुत बार जब आप काम करते होगे तो आप लिखते हैं, हम ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं, एक बेसिक इक्वेशन लेते हैं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, इसके बाद हम बोलते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर मेरे को कुछ भी वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू, लाइक y की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, तो इफ आई से m इक्वल्स टू बेसिकली 3, x इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तीन आई हैव दीस थ्री वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास एक सोल्यूशन निकलेगा। तो m, x और c को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि ये वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, c एक वेरिएबल है, m एक वेरिएबल है। r में भी वेरिएबल्स होते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। एक ऐसी चीज जहां पे आप कुछ सेव कर सको और बाद में उसको यूज कर सको, तो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा मैं। इफ स्टिल यू आर नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड, आस्क योर डाउट्स, ठीक है। और बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ। अ वेरिएबल इज अ लोकेशन जहां पे आप कुछ सेव करते हो और बाद में यूज करते हो। आपने m के अंदर कोई वैल्यू सेव करी और उसको बाद में इस इक्वेशन में यूज किया, दिस इज अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स। आर में भी आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही वेरिएबल बना सकते हो और इसको बाद में यूज कर सकते हो, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, तो ऐसी चीजें कर सकते हो आप। तो दैट इज अ वेरिएबल इन आर, ठीक है। तो अब आर में वेरिएबल बनाते कैसे, ठीक है। आर के अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपने 3, 4 और 0 वैल्यू सेव करी, तो ये वैल्यू क्या थी, एक इंटीजर वैल्यू थी। इनको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो आर में भी इनको इंटीजर्स ही बोलते हैं। उसके बाद आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल नंबर्स हैं, 4.0, 4.3, इन नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये भी आर में आपके पास होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये हो गया आपका इंटीजर्स, ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फिर आपने अगर इसको मैं ऐसे बोलूं सी, तो ये हो जाते हैं करेक्टर, ठीक है।
स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं तो ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बोलते हैं इसको कैरेक्टर्स। व्हेन इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो मैंने ऐसे लिख दिया अगर इसको, तो ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। एक अल्फाबेट है तो दैट इज अ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज योर स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपके डेटा के टाइप है, इसलिए बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो यू हैव इंटीजर्स, फ्लोट्स, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब हमारे पास एक और टाइप होता है, लॉजिकल टाइप बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर आता है ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टाइप होता है, ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एज एक एक बेसिकली फॉर्म है जहां पे एज है कि अंडर 18, क्या आर यू अंडर 18, तो इसका आंसर क्या आएगा, या ट्रू आएगा, ठीक है। तो ट्रू या फिर फॉल्स, तो ये आपके होते हैं लॉजिकल टाइप्स, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे। ये बेसिक थे, जिनको मतलब जिनका आगे बहुत ज्यादा बेसिकली यूज करोगे आप, और इसके बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये 4 टाइप्स आपको मैंने पहले ही बता दी, ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी और डेटा टाइप के लिए। अब इनको हम आर में बनाएंगे कैसे, हम इंटरैक्टिव मोड यूज करेंगे। ये फाइल वाला मोड सिर्फ मैं आपको भी सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, जो भी मेरे को लिखना होगा या जैसे अभी समझाया मैंने, तो आई विल यूजिंग द फाइल मोड टू लाइक बेसिकली टीच, एंड अभी हम इंटरैक्टिव मोड यूज करेंगे, and gradually we will see how we can use the batch mode to run our commands, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल जो y इक्वल्स टू mx प्लस c है, यही इक्वेशन का आंसर हमें निकालना है r के अंदर। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपने बोला हमें y इक्वल टू mx प्लस c निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए 3 वेरिएबल, एक चाहिए हमें m, एक x और c, जो हमने ऊपर लिया था वही वैल्यू लेते हैं। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम r के अंदर, हम यूज करते हैं एक एरो, ठीक है, जो लेस देन वाला साइन होता है, और एक हाइफन। ये दो वेरिएबल्स जो हैं, ये इक्वल्स टू की जगह हम ये यूज करते हैं, हम इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल हो आप उस चीज में यूज कर सकते हो, हम दोनों के साथ अभी करके देखेंगे। तो आपने ये करा, देखो m इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया। आप साथ साथ देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, आर बैकग्राउंड में क्या कर रहा है। एक वेरिएबल बन गया 3, ठीक है। और आपको वेरिएबल्स क्लियर करने हैं तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, सारे वेरिएबल्स खाली होगा। अगर मैंने देखो अभी वेरिएबल बनाया था बट मैंने उसे क्लियर कर दिया, तो अगर मैं m लिखूंगा यहाँ पे, तो ये बोल रहा है m नॉट फाउंड, तो मेरे को दोबारा चलाना पड़ेगा। अब अगर मैं अपनी पहले वाली कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो अप डाउन जो एरो होता है हमारे पास, ठीक है, वो अप एरो से मैं ऊपर वाली कमांड्स पे जा सकता हूँ वापस, डाउन एरो से मैं नीचे वापस नीचे वाली कमांड्स पे आ सकता हूँ, ठीक है। तो नेविगेट कर सकता हूँ मैं अपनी कमांड्स के बीच में। अब इस कमांड को दोबारा चलाना, मैंने दोबारा चलाया, देखो यहाँ पे वेरिएबल बन गया साथ साथ। फिर से m को प्रिंट करूंगा, अब m की वैल्यू आ, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमारे पास क्रिएट हो गया जिसका नाम है m। इस वैल्यू को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या कैन आई चेंज दिस वैल्यू, यस आई कैन डेफिनेटली चेंज दिस वैल्यू। आई कैन से m इज 5 नाउ। आप देख रहे हो यहाँ पे साथ साथ वैल्यूज जो है वो चेंज होती जा रही है, तो m की वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है। यस, जस्ट अ मोमेंट, ओके, या, ठीक है। तो m, I we have value 5 in m, let's create a variable x, now I will be using equals to operator here, 4.3, ठीक है। तो x की वैल्यू भी यहाँ पे बन गई है 4.3। c की वैल्यू करेक्टर है, बट इक्वेशन में वी कैन नॉट हैव करेक्टर्स, तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, एंड लेट्स कीप इट 0। तो यू विल बी वेरी रेयरली यूजिंग कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग एज वेल, क्योंकि हमारे जो r है, बेसिक r है, एंड द टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी आर लर्निंग, तो वहाँ पे हमारी डेसिमल वैल्यूज जो है उनके साथ हम ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होंगे। c की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो लेट्स से c हो गया 0। नाउ आई हैव टू गेट द आंसर फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस c। okay, so let's create a variable y equals to m। अब यहाँ पे साथ साथ देखना कि मैंने क्या क्या ऑपरेटर्स को यूज किया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, m इंटू एक्स होता है, mx का m इंटू एक्स होना था, तो मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ, m इंटू की जगह हम यूज करते हैं एस्ट्रिक x, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे c। देखो ये इक्वेशन थी हमारी r के अंदर,
कॉपी कर लेते हैं अपनी, और ये हमारी मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क आया। तो ये आर की स्टेटमेंट है और ये हमारी जो हम मैथमेटिक्स के अंदर जनरली स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वो कर दूंगा। देखो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 21.5। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं। थोड़े से टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीखे जिसके अंदर वी लर्न व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, व्हाट आर स्ट्रिंग्स, व्हाट आर कैरेक्टर्स एंड व्हाट आर लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये चीजें अभी तक हमने सिर्फ सीखी। और वेरिएबल बनाते कैसे, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, ये भी चीज हमने सीखी। ठीक है, अब अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप साथ साथ अपने चैट बॉक्स के अंदर अपने सवाल जो है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, एंड हम साथ साथ उसको देखते रहेंगे। एक चीज और सीखी हमने कि अगर हमें कोई फंक्शन को यूज करना है, लाइक वी नो द नेम बट वी डोंट नो कि इसमें क्या पास करना है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, तो हम हेल्प के लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क डाल के एंड वी कैन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। जैसे मीन है, तो हमने देखा था कि मीन में यहाँ पे हम हेल्प के लिए पास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप डबल क्वेश्चन मार्क के साथ आप कुछ चीज को सर्च करते हो, तो लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे मीन नाम नहीं पता तो मैंने एम ई डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये आपको वो सारी चीजें निकाल के दे देगा जिसके अंदर एम ई नाम से कोई भी फंक्शन होगा या कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एम ई नाम से आपके पास पड़ा होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे गए, आप हेल्प पे गए, आप हेल्प पे जाके यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो कि लेट्स से मीन। आपने सर्च किया तो ऐसे आपको नहीं मिला कुछ। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा अपनी सर्च को रिफाइन किया कि आपको मीन निकालना है, तो आपने मीन खाली सर्च किया, तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो गया। जैसे लेट्स से कि आपको बोलना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कुछ सर्च, एग्जैक्ट नहीं मिला उसको, बट उसको मिला एस डी नाम से, यहाँ पे कुछ है स्टैंडर्ड डेविएशन। द फंक्शन कंप्यूट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ये सर्च को भी यूज कर सकते हो, आपको जो करना है वो आप टाइप करके कर सकते हो। आप बेस्ट वे एक और भी है कि आप जो है ब्राउजर पे चीजें सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं अगर उस चीज का बताऊं एक एग्जांपल, तो लेट्स ओपन अप आवर ब्राउजर हियर, और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, कैलकुलेट। तो आपने एक सिंपल एक क्वेरी लिखी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ मिल गया। देखो फर्स्ट लिंक में ही जनरली मिल जाता है आपको, हो सकता है आपको दो तीन लिंक्स ऊपर नीचे करना पड़े। ठीक है, अब ये आया व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको बता रहा है। ठीक है, आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आर के अंदर, वो आपको इसने बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आती, आप कहीं पे ब्लॉक्ड हो, तो आप ये रिसोर्सेज यूज कर सकते हो अपने आप को अनब्लॉक करने के लिए और फर्दर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कि आप कहीं पे ब्लॉक होके ना बैठे रहो कि मेरे को तो ये समझ नहीं आया, अब मैं क्या करूंगा। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। आर जो है लैंग्वेज आप सीख रहे हो, एंड सीखने के लिए आप जो है इस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और लेट मी एश्योर यू कि आप जब आर सीख रहे हो तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं आखिरी के 2 दिन में सारी वीडियोस देखूंगा और मैं सीख लूंगा। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं और फिर बाद में वो खुद ही परेशान होते हैं। ठीक है, बाद में 1-2 दिन के अंदर ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ना कोई और इस दुनिया में हेल्प कर सकता है 2 दिन में तुम्हें कोई चीज को सीखने में। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखना। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो सीखा, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो अब हम देखते हैं कि एक और डेटा टाइप होता है आर के अंदर जो वेरी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल है ये हम देखेंगे अभी थोड़े टाइम में देखेंगे। सिर्फ ये समझना लॉजिकल क्या होता है, जिसके अंदर दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। इसको हम थोड़े टाइम में रुक के अभी देखेंगे। अब आर में एक और होता है डेटा टाइप जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हम कहते हैं वेक्टर। अब क्या है कि आपने अभी तक जो वेरिएबल्स बनाए वो एक एक वेरिएबल था। ठीक है, आपने सी बनाया, एम बनाया, एक्स बनाया, वाई बनाया, इनमें एक एक वैल्यू थी।
if you have to group those values, so if you have to like write marks of all students, सब स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है आप कैसे डालोगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा डेटा टाइप जो ये सारी, अब क्या है कि आप एक चीज क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल, आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो मार्क्स वन इक्वल्स टू लेट से 90, ठीक है, मार्क्स टू इक्वल्स टू 80 और सो ऑन। अब ऐसे आपको 100 बच्चों के मार्क्स करने हैं, आप या तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हो जिसमें 100 बच्चों के आप क्या करोगे, आप सिर्फ मार्क्स को सेव करोगे 100 बच्चों के। सेकंड क्या हो सकता है, सेकेंडली आप सिंपल बहुत एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ वेक्टर ऑफ वैल्यूज। वेक्टर क्या करेगा, a vector is basically a collection of same kind of data, ये भी important। if you are storing marks तो आप वहां पे marks ही सेव करोगे, ठीक है, इंटीजर टाइप। if you are storing something called as floating point values तो all values will be floating point values। अगर उसके अंदर आप कैरेक्टर्स सेव कर रहे हो तो एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो वो खुद से कन्वर्ट कर देगा, जो उसे समझ आएगा। और उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि आगे जाके आप सही से काम नहीं कर पाओगे उन चीजों के साथ, ठीक है। आपने लेट्स से कि आपने एक, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या उसके जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोली वो कैसे आपकी ट्रू होगी, तो बनाते कैसे हैं वेक्टर को वो देखते हैं। एक वेरिएबल लेंगे हम, वी ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप वेरिएबल्स को। अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हमने एक नाम ले लिया, वी ले लिया, बट जब देखो आप जब देखोगे तो मार्क्स की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने मार्क्स वन मार्क्स टू ऐसे करके वेरिएबल बनाए, है ना। आप इसको एबीसीडी भी बना सकते थे, बट एबीसीडी में ना आपको समझ आता, अभी तो आप कर रहे हो लिख रहे हो तो आपको समझ आ रहा है, बट जब आपने कल खोलोगे या एक हफ्ते बाद इस सेम चीज को खोलोगे तो आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपके वेरिएबल के जो नाम है वो हमेशा आपके थोड़े लॉजिकल होने चाहिए। नाम के अंदर जो है वो स्पेसेस नहीं आते हैं, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, आप करेक्टर्स यूज कर सकते हो, आप नंबर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आपका नाम, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रूल्स हैं अगर हम नेमिंग कन्वेंशंस की बात करें कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है आर में, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक वेक्टर। वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, इक्वल्स टू साइन डाला हमने या फिर हम डालेंगे ग्रेटर देन लेस देन साइन एंड हाइफन, ठीक है। उसके बाद एक हमारा फंक्शन होता है सी, ठीक है। कॉन्काटिनेट कहते हैं इसको, इसको कंबाइन भी कह सकते हो कि कंबाइन कर दो सारी वैल्यूज को जो भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब क्या हुआ कि 1 2 7, लेट्स से कि 1 2 नहीं करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं नंबर्स को। लेट्स से यहाँ पे थे 90 मार्क्स एक स्टूडेंट के थे 33, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं देवर लाइक मी, तो कम नंबर भी आए उनके 33, ठीक है, 89, और एक टॉपर था स्टूडेंट हमारा जिसके पूरे 100 से, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को सेव करना होता वेरिएबल्स में तो कितने वेरिएबल्स बनते मेरे, 1 2 3 4 एंड 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स को मैनेज करना मुश्किल होता, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना मुश्किल होता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर को जैसे ही मैंने बनाया, कितने वेरिएबल बने आप देख सकते हो राइट साइड पे, एक वेरिएबल बना और उसके अंदर कितनी वैल्यूज थी, उसमें वैल्यूज थी 1 से 5 तक, और ना क्या था उसमें डेटा, आपका जो डेटा आपने इनपुट किया था 90 33 75 18, यहाँ पे 189 हो गया 89 की जगह। तो लेट्स करेक्ट दिस थिंग, तो मैंने दोबारा इस स्टेटमेंट को चला दिया तो ओवरराइड हो गया, ठीक है। जो पहले डेटा था वो डेटा हट के दूसरा नया डेटा आ गया। अगर मैं सेम स्टेटमेंट को दोबारा चला दूंगा, कोई वार्निंग नहीं देगा कि आप ओवरराइड कर रहे हो, आपने ये बनाया हुआ है पहले, यू विल सी नथिंग लाइक दैट। you will have to be very careful while doing all this coding। तो ये सब चीजों का ध्यान you have to keep it by yourself, ठीक है। R Studio R will not help you in that। तो 90 33 75 89 100 you have these 5 values in your variable v। तो अगर अब मेरे को देखना है, लेट्स से कि मेरे पास ये नहीं था, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब नाउ आई हैव टू प्रिंट दीज वैल्यूज ऑन द कंसोल, तो क्या करूंगा, आई विल जस्ट राइट द वेरिएबल नेम, आई विल हिट एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई 90 33 75 89 100, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे। तो आई होप कि अभी तक किसी को यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं आ रहा होगा। बहुत
बहुत क्लियर होगा, बहुत सिंपल बेसिक लेमैन टर्म्स हम समझ रहे हैं चीज़ों को। एक वेरिएबल बनाया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर बनाते कैसे हैं वो हम ऐसे बनाते हैं। वेक्टर में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, वेक्टर में कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। हमने बात करी थी कि उसमें सिमिलर टाइप की वैल्यूज होंगी, तो लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ 98.5। तो देखो मैंने एक वैल्यू को चेंज किया 98.5 को, और सारी वैल्यूज को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। सबके आगे इसने डेसिमल लिया, जिसका डेसिमल पार्ट नहीं था वहां पे डॉट जीरो आ गया, बस डेसिमल जीरो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि द ऑल वैल्यूज शुड बी ऑफ सेम टाइप। अगर वो सेम टाइप की नहीं होंगी तो इट विल ट्राई टू कन्वर्ट देम टू द सेम टाइप। अगर वो खुद से नहीं कर पा रहा सेम टाइप में, देन इट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, तो एक और यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हम कर देते हैं एक को, इसमें हम एक कैरेक्टर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वी हैव इंसर्टेड अ कैरेक्टर इन एन इन अ वेक्टर वेयरइन ऑल द अदर एलिमेंट्स वर फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर्स। देखो इसने अभी भी हमें एरर नहीं दिया, बट व्हाट इट हैज डन, इट हैज कन्वर्टेड ऑल द नंबर्स टू कैरेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे भी हमने वी प्रिंट किया था, अब यहाँ पे भी 90 आया और यहाँ पे भी 90 आया, बट दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 90 के आगे देखोगे अगर आपके डबल कोट्स नहीं लगे हुए और यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एनीथिंग दैट हैज डबल कोट्स इन आर, इट इज ईदर स्ट्रिंग और कैरेक्टर। ठीक है, तो अब मैं अगर बोलूं कि लेट से, अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। एक वेरिएबल हमने मार्क्स लिया था, मार्क्स वन। मार्क्स वन की वैल्यू प्रिंट करें 90 है, तो मार्क्स वन प्लस कर सकता हूं मैं, 94 हो गया। ठीक है, मार्क्स वन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बट मार्क्स टू की वैल्यू जो है, इसको हम टू को मैं बोलता हूँ 90, सेम वैल्यू। ठीक है, 90 बट कोट्स लगा दिया अब यहाँ पे। अब मैं बोलूँ मार्क्स टू को प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया मार्क्स टू प्लस फोर। क्या बोल रहा है, एरर इन मार्क्स टू प्लस फोर नॉन न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि जो आपने पास करने की कोशिश करी है, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो इंटीजर्स पे होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज पे होता है, बट आपने यहाँ पे एक मेरे को कैरेक्टर वैल्यू दी है। ठीक है, या स्ट्रिंग वैल्यू दी है, तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी। ये आपका सिग्निफिकेंस है डबल कोट्स का। तो बहुत ध्यान से हमें काम करना है कि हम ये चीजें, ये गलतियां ना करें, क्योंकि ऐसे एरर अभी तो एक एक लाइन हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमें समझ आ रही है, बट जब हम इसको बड़ा कर देंगे, हम और ज्यादा चीजें सीखेंगे, तब हम अगर सेम एरर्स को कर देंगे तो हमारे पास मतलब 100 लाइन में हमने अगर लेट से 20 लाइन पे हमने लिखी है, 20 लाइन के कोड के अंदर अगर एक जगह पे ये गलती हुई हुई है, तो इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हमें करना है। हमें अपना बिल्कुल भी जो है ध्यान जो है इधर उधर नहीं करना है, और चीज़ों को साथ साथ देखते रहना है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि क्या वैल्यूज बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि v इज करेक्टर, यहाँ पे स्ट्रिंग था पहले, पहले न्यूमेरिक था, अब करेक्टर आ गया। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ये हैं, ये आपने सो हाउ आई एम कॉपिंग द थिंग्स। मैंने कुछ कॉपी नहीं किया था, मैंने क्या कॉपी किया यार, कंट्रोल सी इज द कमांड। अगर आपको ये कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कर सकते हैं, इसको मैं कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो कंट्रोल सी इज द कमांड टू कॉपी एंड कंट्रोल वी इज द कमांड टू पेस्ट, दैट इज द थिंग। तो एक और है कि पहले में ही हम करेक्शन नहीं कर सकते, इज इट नेसेसरी टू ओवरराइट। आप कर सकते हो करेक्शन, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे कि हम इंडिविजुअल वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, दैट वी विल लर्न अभी। एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज बेसिकली अगर हम एक लाइक अगर यहाँ पे 9 होता खाली, ये वैल्यू को हम बोलेंगे एक करेक्टर। जब इसको ग्रुप कर देते हैं तो बेसिकली अगर मैं इसके अंदर एक से ज्यादा करेक्टर्स डाल दूं तो ये बन जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड वी विल टेक अप दैट क्वेश्चन कि अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कैसे करना, वो हम अभी बात करेंगे व्हेन वी विल लर्न अबाउट इंडेक्सिंग। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो है सबको क्लियर होगा।
कि अभी तक जितना हमने पढ़ा कि वेक्टर बनाना कैसे है, व्हाट इज अ वेक्टर, और कैसे कैसे वो अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज कर देगा, नंबर्स को चेंज कर देगा अगर हम उसमें अलग तरीके से नंबर्स को पास करें। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया है, समझ आ गया आप सबको। ठीक है, अब हमारा पास एक वेक्टर है, वापस से हम वो इसको करेक्टर्स वाला वेक्टर बना लेते हैं, तो इसको क्लीन भी कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यूज भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब और ये वेक्टर जो आप इतनी जगह पे यूज करोगे तो इस चीज को समझने में बिल्कुल जो है वो मत करना, सो लर्न इट वेरी केयरफुली। ठीक है, और ये आप बहुत बार यूज करोगे ये सेम चीज को। वेक्टर आपने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सेस द एलिमेंट्स। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना आपको वी वी लिखते रहोगे हर जगह, आपको मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे? अब अगर इफ वी आर सेइंग दैट दीज आर मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, तो इफ यू जस्ट नीड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट और लास्ट स्टूडेंट, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो व्हाट वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो लेंथ एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं अपने वेक्टर का नाम पास करूंगा तो ये बताएगा इसमें कितनी वैल्यूज है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को आप इस तरीके से समझो कि फंक्शन इज अ कोड जो पहले से किसी और ने लिखा हुआ है। आगे जाके हम अपने फंक्शंस भी लिखेंगे, बट अभी के लिए जो फंक्शंस हम यूज करें जैसे लेंथ है, हमने नहीं लिखा लेंथ। Length is something that is written by someone else and which is available to us by a name called as length. उसमें हम लेंथ लिखते हैं, वी पास द वैल्यूज। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज की लेंथ निकालनी है वो दिया हमने, और हमारे पास आंसर आ गया। हमने नहीं लिखा कहीं पे भी कि लेंथ को हम कैसे यूज करेंगे या लेंथ क्या करेगा। हमें पता था लेंथ कैसे यूज करना है, अगर नहीं पता हमें तो हमने जो है यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क लेंथ, हमें पता लग गया गेट और सेट द लेंथ ऑफ, कि ये वेक्टर की लेंथ के लिए काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमें, हमें बेसिकली लेंथ को कॉल कैसे करना है, यूसेज दिखा रहा है यहाँ पे कि लेंथ एक्स, हमने लेंथ एक्स की जगह अपना वेक्टर डाल दिया और हमारे पास लेंथ आ गई। सेटिंग लेंथ हमें जरूरत नहीं है, बेसिकली इससे आप लेंथ सेट भी कर सकते हो कि कितना बड़ा आपका वेक्टर होना चाहिए या बनेगा इनिशियली। ठीक है, तो वैसी ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास लेंथ, जिससे हमें पता लगा कितने वेक्टर है। अब अगर लेट से कि यहाँ पे आपने 5 वैल्यूज डाली हैं और 5 ही वैल्यूज आपको दिख रही है, तो आपको समझ आ रहा है कि 5 ही वैल्यूज तो थी, लेंथ करके हमें क्या फायदा हुआ। बट थिंक अबाउट अ सिनेरियो जहाँ पे आपने ये डेटा जो है यू हैव फेच दिस डेटा फ्रॉम अ फाइल, तो एक फाइल से आपने डेटा फेच किया। नाउ व्हाट यू हैव टू सी कि इसमें कितनी रोज हैं, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स का डेटा था। लेट्स से कि अगर एक बंदे की कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो इस बंदे के पास कितनी पॉलिसीज हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ये लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मतलब छोटे डेटा पे 5 वैल्यूज हमने डाली है तो हमें पता ही होगा 5 है, तो वहां पे आपको लग रहा होगा कि इसका इतना यूज नहीं है, बट गोइंग अहेड आपके बहुत यूजफुल होने वाली ये चीज है। अब क्या है कि आपने लेंथ निकाल ली, अब आपको निकालना है कि व्हाट आर द मार्क्स फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, तो वो कैसे निकालेंगे? वी, हमारे वेक्टर का नाम, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट्स नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम देते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे होता है, 90 का इंडेक्स है फर्स्ट, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू एंड फिफ्थ वैल्यू। तो वी स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू आएगी। ऐसे ही मैं अगर 2 लिखूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो मेरे पास थर्ड वैल्यू आएगी। ठीक है, दिस वे आप एक वेक्टर की इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और चेंज भी कर सकते हो। क्या हम वेक्टर की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं? तो ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। लेट्स से कि हमने V3 बनाया और यहाँ पे हमारे पास पहले थी 75 वैल्यू, इसको हमने कर दिया 67। ठीक है, अब V देखा तो वैल्यू आ गई 67। ठीक है, तो वैल्यूज को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। और जो आपने करेक्शन वाला बोला था कि कैन वी करेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज हाउ यू विल डू दैट करेक्शन। अब वैल्यूज को इस तरीके से चेंज कर सकते हो वेक्टर की।
अब लेट्स से कि मेरे को जो है 90.0 वाला था, जैसे 89 था, 89.5, इसको वापस 89 करना है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं देखूंगा ये कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं V4 पे क्या करूंगा, ये V4 की वैल्यू पहले मैं चेक करूंगा, अच्छा ठीक इंडेक्स करा है, कहीं मैं कुछ गलत वैल्यू को ऑल्टर ना कर दूं। तो 89, क्योंकि एक बार मैंने ऑल्टर कर दिया, वापस पहले नहीं जा सकता अगर मेरे को नहीं पता वैल्यू। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है हमें, हम पहले देख लेंगे वेरीफाई करा के हाँ 89.5 वैल्यू ही है, दिस इज द वैल्यू जिसको हमें ऑल्टर करना है, इसको हमें 89 बनाना है वापस। ठीक है, और V देखूंगा, तो V बन गया हमारा ये वेक्टर। ठीक है, देखो क्योंकि वो एक ही वैल्यू की वजह से इसने जो है सबको डेसिमल में कन्वर्ट किया था, बट नाउ एवरीथिंग इज इंटीजर, तो इसने उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी सबके आगे से भी डॉट जीरो हटी है। तो ये होता है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज। अभी तक के लिए जो हमने देखा इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और हम लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका होता है बेसिकली यहाँ पे इंडेक्सेस को निकालने का। अब आपको क्या करना है, आपको एक से ज्यादा वैल्यूज को फेच करना है वेक्टर के अंदर से। तो आप कैसे करोगे? तो आप सिंपली क्या करोगे, आप v लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और वेक्टर भी दे सकते। ठीक है, v क्या करता है, v बेसिकली आपका जो वेक्टर था वो था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हमने। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अंदर एक वैल्यू दे रहे थे 4 3 1 2। अब आपको देनी है एक से ज्यादा वैल्यू, तो एक से ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाया दो वैल्यूज का। ठीक है, तो लेट से कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करता, अगर मैं इसको, तो मैं कैसे करता, लेट से मैं यहाँ पे वैल्यूज बनाता, x एक वेक्टर बनाया, जो इसके अंदर वो इंडेक्स है जो मेरे को फेच करना है। मेरे को फर्स्ट चाहिए, मेरे को फोर्थ चाहिए, ठीक है, और मेरे को फिफ्थ भी चाहिए। ये तीन वैल्यूज को फेच करना है। अब अगर मैं v से इंडिविजुअली निकालता, तो मैं कैसे निकालता, 1 लिखता, फिर मैं लिखता V4, और फिर मैं लिखता V5। बट अब v से ये तीनों को एक साथ निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, ये तीनों वैल्यूज चाहिए, तीनों वैल्यूज क्या ग्रुप है, और ग्रुप का मतलब क्या हो गया, वेक्टर। इसमें अगर मैं x पास करूंगा, तो ये देखो तीनों वैल्यूज को निकाल के मुझे दे। 2 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं कि आप इस चीज को एब्जॉर्ब करो, कि अभी तक जो हमने सीखा है, और अपने सिस्टम पे साथ साथ इसको करो। तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, और 2 मिनट में इस चीज को एक बार एब्जॉर्ब करो। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, तो वो आप मेरे से पूछो। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा कि हमने अभी क्या किया था। ठीक है, और आपने अपने सिस्टम पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो लेट्स मूव अहेड, वेक्टर के बारे में ही थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, अब आपने अभी तक देखा लेंथ कैसे निकालनी है, ऐसे आपने एक लेंथ निकाल ली एक वेक्टर पास करके। वेक्टर को बनाने का एक और तरीका भी होता है। लेट्स से कि आपको चाहिए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आपको चाहिए 1 to 100 तक कुछ नंबर्स चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, या तो आप एक वेक्टर बनाओगे इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके लिखोगे कि v एक वेक्टर है जिसकी वैल्यूज क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 100 तक आप लिखोगे इसको। ठीक है, ऐसे करके आप एक वेक्टर बनाओगे। एक और तरीका क्या है ये सीक्वेंस को जनरेट करने का, इट इज सिंपल, कि आप 1 to 10 लिख दो यहाँ पे। तो इसने नंबर जनरेट किया आपके 1 से लेके 10 तक, एक वेक्टर बनाया इसने। तो कैसे पता लगेगा कि ये वेक्टर है? अब मैं इसको y के अंदर सेव करूं। ठीक है, तो y की वैल्यू देखो क्या है, और x की वैल्यू देखो, सॉरी, ये v की वैल्यू है num 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा y 1 to 10। ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, वो सेम है वैल्यूज, आपको इसमें
ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी इस चीज के अंदर, सेम ही मान के चलो उसको कि बोथ आर दी सेम वैल्यू। ठीक है, अब आपको लेट्स से कि जनरेट करना था 1000 तक, तो ये वो नंबर्स भी आपके लिए जनरेट करेगा सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपको कई बार होगा कि आपको जैसे कुछ सिमुलेशंस करनी है तो वहां पे आप ये चीज को देखोगे और आप एक वेक्टर जनरेट करोगे लेट्स से 1000 नंबर्स का, एंड देन आप उस पर आइटरेट करके कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तो वहां पे हेल्पफुल होगा। दूसरा भी कहाँ क्या है जहाँ पे हेल्पफुल होगा, आपने ये v बनाया था, ठीक है, अब इस v में से आपको v की वैल्यू को चेंज कर देते हैं पहले तो, इसको वापस से वही कर देते हैं जो हमारी नंबर्स थे, ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सेकंड और थर्ड एलिमेंट निकालना है। ठीक है, अब ये 5 ही वैल्यूज थी, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती थी, तो लेट से कि अगर आपको उस पर्टिकुलर एरे में से 20 से लेके 30 तक के सारे नंबर्स, मतलब 20 इंडेक्स से लेके 30 इंडेक्स तक सारे चाहिए होते, तो आप क्या करते, तो या तो आप 20, 21, 22 से लेके 30 तक लिखते एक वेक्टर के अंदर, और वेक्टर यहाँ पे पास करते वी के अंदर ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट वे वाज दैट, बट सेकंड वे क्या है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट राइट दी दिस शॉर्टकट है, 2 to 5 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 3 4, 2 to 4 लिखा, 2 3 और 4 ये चारों एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं इसको लिखूंगा 2 to 5, तो मेरे पास 2 3 4 5 आ गया। अगर पूरे ही वेक्टर चाहिए तो मैं 1 to 5 लिखूंगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सेकंड से लेके लास्ट एलिमेंट तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 to 5, बट 5 मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे 5 वैल्यू है, हो सकता है कि दिस नंबर कैन बी n, मैंने एक लोड करी फाइल, ठीक है, उस फाइल से मैंने एक वेक्टर बनाया, नाउ मेरे को ये नहीं पता कि इसके साइज क्या है, तो साइज निकालने के लिए अभी हमने समझा कि क्या फंक्शन होता है, हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ ऑफ v। तो ये क्या करेगा, देखो 2 से लेके लेंथ ऑफ v, लेंथ ऑफ v का क्या आंसर आएगा 5, तो मतलब 2 से लेके 5 तक वैल्यूज हमें दे देगा। ठीक है, तो ये चीज को समझना जरूरी है कि आप जो है फंक्शंस को कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेंथ अगर फंक्शन है तो मैं लेंथ को सिर्फ ऐसे ही यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं और तरीकों से भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि एक तरीका उसमें से आपको मैंने बताया जो कि था ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो आपने लेंथ का फंक्शन लगाया वहां पे एक गलती है कि ये आपने जो एंडिंग ब्रैकेट्स हैं वो आपने नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर आप ऐसे करोगे v और सिंपली यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ v, इससे आप लोग एक बार गेस करने की कोशिश करो कि आपका क्या आउटपुट है, क्या आंसर आना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्यों, क्योंकि लेंथ v क्या आंसर आएगा, लेंथ v का ये आंसर आएगा 5, v5 का मतलब क्या हुआ, लास्ट पांचवी पोजीशन, दैट वाज 90, तो वो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है इंडिविजुअल वेक्टर्स की पोजीशंस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। और जैसे 2 से 4 तक निकाल लिया, 1 से 2 तक निकाल लिया, 1 से 5 तक निकाल लिया, 1 से 4 तक, 3 से 5 तक, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, कि आपने बड़े वेक्टर के अंदर से एक छोटा वेक्टर निकाल लिया। अब इस वैल्यू को मैं कहीं पे सेव भी कर सकता हूँ, सेव करने के लिए एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से कि मेरे पास एक वेक्टर था v, ठीक है, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। v मेरे पास ये था, मैंने बनाया v1, जिसके अंदर क्या है वैल्यूज, जिसके अंदर वैल्यूज हैं सिर्फ v2 से लेके 4 तक, तो v1 करूंगा मैं यहाँ पे, देखो ये आ गया, v आ गया ये, और ये दोनों अब अलग अलग वेक्टर्स बन गए। अगर मैं v1 के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, v1 का फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं देखूं, तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं कर देता हूँ 10, तो v1 के अंदर आ गई वैल्यू 10, 75, 89, और v के अंदर आ गई 90, अभी भी पुरानी वैल्यू से, तो ये नया एक वेक्टर बन जाएगा आपके पुराने वेक्टर से। तो इस पार्ट को कहते हैं हम स्लाइसिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक तो सब समझ आया होगा। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं आप पूछो, मैं साथ साथ चैट सेक्शन भी चेक कर रहा हूँ, एंड द डाउट्स जो
आपके मतलब वैलिड डाउट्स हैं, ठीक है। एक था कि आर स्टूडियो का लिंक जो है ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एंड आई विल स्टिल आस्क टू प्रोवाइड यू दैट लिंक इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने वेक्टर के बारे में इतनी चीजें सीखी, ठीक है, वेक्टर बनाते कैसे हैं, ठीक है। आप लोग 2 मिनट लेके इस वेक्टर, एक वेक्टर बनाओ, वेक्टर की डिफरेंट पोजीशंस को एक्सेस करो, एंड उसकी लेंथ फंक्शन जो है, जैसे लेंथ होता है वो करो। आप सीक्वेंस जनरेट करके देखो 1:5, 1:10, 1:100 करके, आप थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाओ कि आर स्टूडियो पे कैसे काम करना है। अभी तक आप देख रहे होगे कि हमने ये ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए चीजें यूज करा है, हम इंटरैक्टिव शेल को ही यूज कर रहे हैं, हम अभी फाइल्स को नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। और अब हम इसके बाद 1 मिनट सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ, आप चीजें समझो, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वेक्टर के नेक्स्ट पार्ट पे ही मूव करेंगे। तो यू हैव 1 मिनट टू अब्सॉर्ब दिस थिंग्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं वेक्टर के। अब वेक्टर के अंदर आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हो। कुछ हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि 1+2, 1 और 2 को आप अलग अलग वेरिएबल में डाल सकते हो, ए बी, और फिर A+B कर सकते हो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए आप लिखते हो, मल्टीप्लाई का एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है हमारा हमेशा, तो 2 × 3 कर दिया आपने, ठीक है। आपको डिवाइड करना है तो आप सिंपली ये कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी, अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि ये आपका इंटीजर वैल्यू आए जब आप डिवाइड करो, तो आप ये कर सकते हो। इससे क्या आ रहा है, बेसिकली आपका 0 आया, जब आप सिंपल डिवाइड करोगे तो आपका फ्लोटिंग पॉइंट जो भी आपका डेसिमल वैल्यूज बन रही होगी। अब अगर मैं इस नंबर को ऐसा कर दूं कुछ 7/3, तो मेरे पास आंसर है 2, ठीक है। और अगर मैं इसमें से ये परसेंटेज साइन हटा दूं तो 2.33। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप परसेंटेज स्लैश परसेंटेज ये ऑपरेटर यूज करोगे। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही चाहिए, तो आप सिंपली डिवाइड ऑपरेटर यूज कर दोगे, ठीक है। और इसके बाद आपके पास प्लस हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, 2 एक कैरेट ऑपरेशन होता है जो 6 के ऊपर आपको मिलेगा, ये वाला ऑपरेटर। तो ये आपका यूज होता है पावर निकालने के लिए, 2⁻³ हो गया इसका मतलब, ठीक है। 2⁻³ क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो वो आ गया आपके पास। और बेसिक ऑपरेटर्स जितने भी आपके आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो एज इट इज यूज होते हैं। माइनस के लिए आप ये प्लस के साथ वाला जो माइनस साइन है, हाइफन जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। माइनस में भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो आपके वेरिएबल्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे कि सेम ऑपरेटर को अगर मैं वेक्टर के साथ यूज करूंगा तो क्या आएगा आंसर। तो लेट्स से मैंने एक वेक्टर बनाया बी, V1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। V1 के अंदर मैंने वैल्यू डाली 2 3 4, ठीक है। V2 एक वेक्टर बनाया मैंने, इसके अंदर वैल्यू डाली मैंने 1 1 1, ठीक है। V1 देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पे V1 के अंदर वैल्यू आ गई 2 3 4, V2 के अंदर 1 1 1। अब क्या मैं अपना जो प्लस ऑपरेटर है, can I use this operator with vectors as well? So answer is yes. You can use all these operators with vector as well. तो जब आप ऐसा करोगे तो ये कैसे वर्क कर रहा है, तो it will add to the first index of v1 with first index of v2, second index of v1 with second index of v2, and so on. तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि वो इंडेक्स वाइज जो है वो ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस भी ऐसे ही करेगा। सिमिलरली मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आई कैन राइट डिवाइड, ठीक है। और सिमिलरली मतलब यहाँ पे सारे ऑपरेशन जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके ऑपरेशन है, आंसर सेम इसीलिए आ रहा है क्योंकि 1 1 1 है नीचे, ठीक है। तो आप सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा सकते हो। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि V1 तो आपका अभी भी ऐसा था,
ठीक है, आपने v3 बनाया जिसके अंदर वैल्यूज थी 2 4, ठीक है। तो अब देखो v1 में आपकी वैल्यू है 2 3 4 और यहाँ पे v3 में वैल्यू क्या है 2 एंड 4। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, वहां पे 3 वैल्यूज हैं। कैन आई नाउ ऐड दीज 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या आप इसको ऐड कर सकते हो दोबारा। दोबारा जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर इज यस, कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे रेड रेड कुछ आ रहा है बट दैट इज अ वार्निंग साइन, क्योंकि यहाँ पे ये चला है बट कैसे चला है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वैल्यू वॉज 2, 2 प्लस v3 के अंदर फर्स्ट वैल्यू थी 2, तो 2 प्लस 2 4, तो आंसर है 3 प्लस 4 इज 7, तो आंसर है 7। बट ये इसने 4 को क्या चीज करा कि इसका आंसर 6 आ गया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि इसने वापस से 2 वाली वैल्यू ले ली, ठीक है। तो इसकी लास्ट एलिमेंट और इसका वापस से फर्स्ट। तो ये कैसे चल रहा है बेसिकली कि इसने v1 में देखा कि कितने एलिमेंट्स है। v1 में हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर से, v1 में हमारे पास एलिमेंट्स थे 2, 3, 4 और इसने देखा कि v3 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, v3 के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, तो इसने लिखा 2, 4। बट ये कह रहा है ये तो अब द लेंथ ऑफ v3 इज स्मॉलर देन v1, तो इसने क्या करा, इसने खुद के एरे को रिपीट करना शुरू कर दिया, तो वापस से 2 आ गया यहाँ पे। लेट्स से अगर इसके अंदर एक और वैल्यू होती, इसके अंदर 5, 6 भी होता, तो क्या करता, तो 2 के बाद ये वापस अपने आप को रिपीट करता 4, फिर 2, फिर 4, तो ये ऐसे चलता। तो वो क्या करता है, खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है अगर आपके पास एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर में कम है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो परसेंटेज फंक्शन का एक डाउट आया कि परसेंटेज फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो अगर आपने परसेंटेज फंक्शन नहीं था, बेसिकली ऑपरेटर जो था दैट वाज परसेंटेज स्लैश एंड देन परसेंटेज, ये पूरा तीनों मिला के एक ऑपरेटर बनता है, ठीक है। आपने बोला 7 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आता है 2.33 आना चाहिए था। बट वो 3 पार्ट को हमने हटा दिया अगर हम ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंपली डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज करते स्लैश, तो मेरे पास आंसर आता 2.33। बट अगर मेरे को ये 0.33 वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं परसेंटेज स्लैश परसेंटेज ऑपरेटर यूज करूंगा। एक और ऑपरेटर है दैट इज बेसिकली, तो इसका आंसर क्या आता है, देखो ये तीनों ऑपरेटर बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको पूरा एक उसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिला कि क्या आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला रिमाइंडर, यहाँ पे आपको मिला क्वेश्चन। तो अगर आप डिवीजन के टर्म्स में बात करो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको, अगर आप डबल परसेंटेज यूज करोगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर, आप ये ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है, तो आपको परसेंटेज स्लैश परसेंटेज, तो आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो दैट इज 2, ठीक है। तो आई होप कि अब ये वाला डाउट जो है आपका क्लियर होगा, है ना। ऑपरेटर की हेल्प आप ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है, आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। आप ट्राई कर सकते हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऑपरेटर की हेल्प देखने के लिए, बट यस ऑपरेटर की हेल्प नहीं देख सकते आप ऐसे। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राई करके कि शायद आपको कुछ मिल जाए। तो ये आपके पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ गए और इन ऑपरेटर्स की आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। परसेंट परसेंट एंड percent slash percent y can be used for non-integer this value but results are subject to representation error। तो मतलब कुछ कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आई डोंट नो कि इससे आपको कितना समझ आएगा, बट स्टिल अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मैं एक बार आई कैन एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम एज वेल। परसेंटेज स्लैश परसेंटेज जो है ये आपको देगा क्वेश्चन। अगर आप सिंपल स्लैश यूज करोगे तो इट विल गिव यू द कंप्लीट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो डिवीजन के बाद आना चाहिए था। और अगर आप डबल परसेंटेज यूज करोगे तो इट विल गिव यू द रिमाइंडर, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। एंड सिमिलरली द कंसेप्ट जो अभी हमने समझा कि व्हाट हैपेंस इफ हम एक वेक्टर जो है उसके अंदर इस तरीके से एक बड़ा वेक्टर हो और एक छोटा वेक्टर हो, तो हम क्या करते हैं, तो वो भी आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा एंड आप लोग जो है समझ गए होंगे वो वाला पार्ट, ठीक है। तो इस सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि v1 हमारे पास एक वेक्टर था, v1 में अगर मैं सिंपली एक नंबर ऐड करूंगा 2,
तो क्या आंसर आना चाहिए? पहले आप एक बार इस चीज को सोचो एंड देन मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो, टू को क्या करेगा ये, जब आपका एक v1 वेक्टर है तो टू जो सिंगल नंबर है उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो v1 को प्लस जब करेंगे टू के साथ तो टू को एक एक वेक्टर में कन्वर्ट करेगा और हर एलिमेंट के साथ उसको जो है ऐड कर देगा। तो v1 की वैल्यू क्या थी, 2 3 4, इसने कहा 4 5 6, तो सब में टू टू ऐड कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कैरेट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, तो पावर हो जाएगी इसकी, तो 2 to the power 2 4, 3 to the power 2 9, 4 to the power 2 16। तो इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दिस वे में आप जो वेक्टर्स है उसको आप यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव द न्यूमेरिक डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा पॉइंट्स प्लस माइनस आप सिंगल वैल्यू के साथ भी कर सकते हो, वेक्टर्स के साथ भी कर सकते हो। सेम लेंथ होगा तो क्या बिहेवियर होता है वो हमने देखा, डिफरेंट लेंथ होगी तो क्या बिहेवियर होगा वो भी हमने देखा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसको मतलब यूज करने के एक वेक्टर को, ठीक है। और मतलब छोटे छोटे कुछ कुछ फंक्शंस और भी हैं जो हमारे पास आएंगे, जैसे कि एक फंक्शन है हमारे पास रिपीट, ठीक है। ये क्या करता है, एक वैल्यू को रिपीट करता है एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमने कहा कि रिपीट 2 5, तो देखो क्या करा इसने, 2 को 5 बार रिपीट कर दिया, तो एक बेसिकली वेक्टर रिटर्न कर देगा ये, जिसके अंदर सेम वैल्यूज होंगी एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। वैसे ही एक फंक्शन है SEQ, सीक्वेंस फंक्शन बोलते हैं इसको। सीक्वेंस फंक्शन क्या करता है, एक सीक्वेंस जनरेट करता है। लेट्स से बोला मैंने 1, जैसे अभी हम 1:10 किया था हमने, 1 to 10 किया मैंने यहाँ पे, तो इसने 1 से लेकर 10 तक एक सीक्वेंस रिटर्न कर दी। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कितने के गैप पे सीक्वेंस चाहिए। आप बोलो 0.1 के गैप पे मुझे चाहिए, देखो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर एक पैरामीटर होता है लेंथ, आप लेंथ पास कर सकते हो कि 1 से 10 के बीच में मेरे को 1000 नंबर चाहिए, तो आई नीड 1000 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इसने क्या करा कि आपके अपने आप उसने देखा कि मैं कितने से इसको डिवाइड करके, मतलब कितना कितना मैं आगे बढ़ाऊंगा कि मैं एक नंबर 1000 नंबर जनरेट कर सकता हूँ फ्रॉम 1 to 10। तो देखो इसने 1.100 करा, फिर 1.009 और समथिंग, ये बढ़ाता गया उसको और ये नंबर्स को जनरेट करता रहा, ठीक है। ये सिक्वेंशियली नंबर जनरेट होते हैं सारे, ठीक है। ये गैप है आपका, यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ और ये बहुत सारे नंबर्स। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 1 से 10 तक के मेरे को चाहिए कितने नंबर, मेरे को चाहिए 3 नंबर, तो उसने दिया 1, 5.5 और 10, तो 3 नंबर है। फर्स्ट जो मिडिल नंबर था वो मिड का आ गया हमारे पास। सिमिलरली मैं 4 बोलूंगा तो ये 1, 4, 7, 10 ऐसे, मतलब इक्वल डिस्टेंस होंगे वो नंबर हमेशा। तो ये हमारे एक और फंक्शन था सीक्वेंस फंक्शन, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और आज के लिए आई थिंक वी हैव लर्नड इनफ ऑफ वेक्टर्स। कुछ फंक्शन है, सिर्फ 2 3 मैं और बताता हूँ आपको। जैसे एक फंक्शन है हमारे पास मीन, अगर आपको एक वेक्टर के सारी एलिमेंट्स का मीन निकालना है तो v1 आप देख के ऐसे मीन निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप SD फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। सम करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो सम निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे जैसे हम आगे करते रहेंगे और क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे तो वी विल बी लर्निंग अबाउट दीज फंक्शंस। लेट्स से कि आप कुछ सीख रहे हो और आप कहीं अटक गए कि अच्छा मुझे अब मोड निकालना है एक वेक्टर का, ठीक है, मोड ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो मैं कैसे निकालूंगा। व्हाट यू कैन डू इज, जो आपको सबसे पहले बताया था कि आप हेल्प पे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या मोड नाम से कुछ होता है हमारे पास। आपने मोड निकाला, आपको मोड नाम से ही मिल गया कि एक फंक्शन होता है, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। मोड एक्स न्यूमेरिक 1, तो बेसिकली वैल्यू नहीं, यहाँ पे कुछ और आया है इसकी वैल्यू, एक बार डिटेल पढ़ते हैं। मोड की स्टोरेज, तो बेसिकली ये कुछ और दे रहा है, ये मोड जो है इसीलिए देखो यहाँ पे हमने मोड लिखा और यहाँ पे मोड ही लिखा, तो बेसिकली क्या वैल्यू है यहाँ से, तो हमें लग रहा है कि ये जो स्टैटिस्टिक वाला फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, बट व्हाट इट इज एक्चुअली रिटर्निंग इज द टाइप ऑफ द v1। तो जो भी v1 वेक्टर था उसका जो टाइप था वो इसने रिटर्न किया। तो दैट इज समथिंग जो हमें ध्यान रखना होगा कि हम अगर वो कर भी रहे हैं तो भी मतलब ये सर्च हेल्प देख भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम फंक्शन को देख के वहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है।
तो एज अ होमवर्क आप ये चीज़ों को समझना कि मोड कैसे निकाल सकते हैं, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, और वेक्टर के अंदर और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अलॉन्ग विद व्हाट ऑल वी हैव स्टार्टेड राइट नाउ। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छी पेस पे आगे बढ़ेंगे, और अगर आप अभी इसको ढीला छोड़ोगे तो आगे यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द पेस। ठीक है, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड वी विल बी स्टडिंग मोर in the tomorrow's class. And if you have any doubt, you can mail your doubts, and we can get them resolved as early as possible. Thank you for joining the class. Thank you.